Hello students, good morning to all of you. As we know that the running topic is the village blacksmith. This is poem and composed by Henry Wadsworth Longfellow. According to the expression of the poet Henry Wadsworth Longfellow, he wants to convey to the students and to the people of the world. He wants to give the information about the village blacksmith. So how he becomes and he works as a hard work. He looks like hard working man, and regularly he does this. This is good habits, and on the other hand the poet wants to express his honesty, and through honesty whatever you have earned, that is too good and too weighty. So according to the Henry Wadsworth, how blacksmith works as a hard worker from morning to evening, according to the poet and according to the poem, we have to follow and we have to understand the thought about the Henry Wadsworth Longfellow. Under a spreading chestnut tree, the village smithy stands. Smithy means here workshop of blacksmith, मतलब एक पेड़ के नीचे ब्लैक स्मिथ का दुकान था. द स्मिथ, a mighty man is he was a strong man with large and snowy hands. Snowy hands means powerful hands. That means he was too strong person, and the muscles of his brawny arms are strong as iron bands. और उसके जो muscles थे, muscles होते हैं वह बहुत ही मजबूत आयरन की तरह मजबूत होते हैं. So here the physical information given by Henry Wadsworth Longfellow, and in second stanza which kind of situation creates in front of the poet and what he wants to express and what he wants to give the information from second stanza. His hair is crisp. According to these lines, the poet wants to describe about the complexion of his body and how he looks. His hair is crisp and black, and long his face is like the tan. उसके बाल जो हैं उस स्मिथ के, ब्लैक स्मिथ के जो बाल हैं वो घुंघराले हैं, ब्लैक हैं, लंबे लंबे हैं. बट हिज टेल्स convey like a tan. It proves the hair of blacksmith. मतलब धूप में काम करते करते, टैन मीन्स झुलस जाना, धूप में काम करते करते उसके बाल जो है सो झुलस गए हैं. उसके बाल तो घुंघराले हैं, ब्लैक हैं, लॉन्ग हैं. उसके फेस इज लाइक द टैन, मतलब धूप में झुलस रहे हैं. हिज ब्रो इज वेट विद ऑनेस्ट स्वेट. ही अर्न्स वॉट एवर ही कैन. हिज ब्रोज इज वेट. ब्रोज मीन्स हेयर, हेड. उसके हेड जो हैं सो भीगे हुए हैं
एंड उसके हेड के ऊपर जो है जो स्वेट है वो बिल्कुल ऑनेस्ट स्वीट है, ऑनेस्टी है उनके सर माथे पर दिखाई दे रहा है, बिकॉज ही इज डूइंग हार्ड वर्क एंड ही अर्न्स वॉट एवर ही कैन, एंड थ्रू ऑनेस्टी ही वॉन्ट्स टू अर्न फॉर हिज फैमिली how to live on the earth, but honestly he wants to earn. All about the information, through information we learn, we have to concentrate on our hard work, and we should become hard worker person, and through that we can prove in front of the world I am honest, and through honesty I have earned a lot of things, whatever I want or our my family wants. So he earns whatever he can, जितना कमा सकता था, जितनी उसमें काबिलियत थी कमाने की, अर्न करने की, वह कमाता था, and looks the whole world in the face, for he owes not any man, and looks the whole world in the face, for the owes not any man. And according to this information, Henry Wadsworth Longfellow wants to inform, looks the whole world मतलब पूरे दुनिया को देखो, इन द फेस फॉर ही ओज नॉट एनी मैन, मतलब अपने हार्ड वर्किंग के थ्रू वह दुनिया में हर चीज़ को पाना चाहता है, हर चीज़ को लेना चाहता है, वह किसी इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता है. इट इज नॉट सूटेड हिम. It is not suited to the blacksmith because his physical condition was too good. He was a hard worker person, and through hard working but by honestly he wants to earn, and through that he wants to maintain his family. Now the next stanza what tells you, week in week out from morn till night. Mark my point, यहाँ मॉर्न दिया हुआ MORN, ये मॉर्न यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म है किसका, मॉर्निंग का. दैट मीन्स वीक इन वीक आउट फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, मतलब सप्ताह में प्रत्येक दिन, एवरी डे इन अ वीक, सुबह से शाम तक, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट मतलब फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट मतलब सुबह से रात तक. यू कैन हियर हिज बिलोज ब्लो, आप जो है सो उसके बिलोज के बहने की आवाज़ सुनते होंगे, महसूस करते होंगे. बिलोज एक तरह का उनका टूल्स होता है, आपने देखा होगा लोहार के दुकान में अगर गए होंगे तो उसके दुकान के अंदर एक जो है सो बैग के तरह बना हुआ होता है, एंड जिसके माध्यम से वो क्या करते हैं, एयर क्रिएट करते हैं. ओके, दैट इज नॉन एज बिलोज, एंड बिलो मीन्स यू नो बहना. सो द साउंड ऑफ द बिलोज यू कैन हियर, आप सुन सकते हैं. यू कैन हियर हिम स्विंग हिज हैवी स्लेज विद मेजर्ड बीट एंड स्लो, और आप उसके हथौड़े चलाने का जो है सो आवाज़ भी सुन सकते हैं, जो कि रेगुलर इंटरवल पर बजते हैं. लाइक अ सेक्सटोन रिंगिंग द विलेज बेल. सेक्सटोन मीन्स वन काइंड ऑफ ऑफिसर. ईसाइयों के चर्च में जो
अधिकारी होते हैं, ऑफिसर होते हैं, उसको हम लोग सेक्सटन कहते हैं। सो लाइक अ सेक्सटन रिंगिंग द विलेज बेल, जैसे कि चर्च के अधिकारी गांव के घंटी को बजाते हैं। व्हेन द इवनिंग सन इज लो, व्हेन द इवनिंग सन इज लो, और जैसे ही शाम ढलती है तो सेक्सटन जो है सो विलेज बेल को रिंग करते हैं। लाइक द साउंड क्रिएट्स इन रेगुलर इंटरवल्स। तो बराबर अंतराल पे आप लोहार के दुकान में देखे होंगे, गए होंगे तो आप देखे होंगे वह रेगुलर इंटरवल्स पर क्या करता है, हैमर को चलाते रहता है। हेवी स्लेज मीन्स बिग हैमर, बड़ा हथौड़ा से वो पीटते रहता है और उससे साउंड क्रिएट होती रहती है। यू हैव टू इमेजिन हाउ मच ही is doing hard work. That means he understands it is our nature, it is my duty to do hard work, and through hard working we can get each and every things, and we can earn according to my capacity and ability. That's the thought of Henry Wordsworth Longfellow, and has given an example of blacksmith. Okay, so sexton means ऑफिसर, चर्च का एक अधिकारी जो विलेज बेल को रिंगिंग करते हैं। ठीक उसी तरह के साउंड जो है सो क्रिएट होते थे जब ब्लैक स्मिथ जो है सो हैवी स्लेज को स्विंग करता था, मतलब चलाता था, पीटता था। Heavy sledge is referring here for big hammer. Clear? So the first stanza means you understood, second stanza means you have understood, and third stanza also you have followed. So from first to third you have looked. In a spreading chestnut tree, a shop work stands, the smith, the blacksmith, a mighty man. That means he was a strong man with large and sinewy hands, and the muscles of his brawny arms are as strong as iron bands. आप जो है सो हैंनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो एक स्मिथ का उदाहरण दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उसके जो बनावट थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, बहुत ही ब्रेव थे, एंड मसल्स लुक लाइक आयरन बैंड्स. ओके, हिज हेयर इज क्रिस्प एंड ब्लैक एंड लॉन्ग, एंड हिज फेस इज लाइक द टैन. टैन मीन्स धूप में झुलस जाना, आग के सामने झुलस जाना. दैट मीन्स हिज हेयर describes the condition of a smith, and that particular person, one who is working in the village in the shop of blacksmith. His brow is wet, his head is wet with honest sweat. वो जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो मेहनत का फल मीठा होता है, आप जानते होंगे. तो उनके माथे पे पसीना दिखाई देती है. तो क्यों इतना मेहनत करते हैं? बिकॉज थ्रू ऑनेस्टी ही वांट्स टू अर्न फॉर हिज फैमिली. कि हमारे फैमिली के लिए हम जितना कमा सकते हैं, जितना काम कर सकते हैं, मेरे कैपेसिटी जितने हैं उतना मैं अर्न करूँ थ्रू हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट. एंड लुक्स द होल वर्ल्ड इन द फेस फॉर ही वॉज नॉट एनी मैन. वह अपने काम पे विश्वास रखता है, अपने कार्य के थ्रू
वह सब कुछ पूरा करना चाहता है इस दुनिया में, वह किसी भी व्यक्ति के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता है। दैट इज़ द ग्रेट थॉट इन ब्लैक स्मिथ। वीक इन वीक आउट मतलब सप्ताह आते हैं सप्ताह जाते हैं, प्रत्येक दिन फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, मॉर्निंग ही दिया हुआ है बुक में, दैट रेफर्स फॉर मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से शाम तक जो है सो वह काम करते हैं। यू कैन हियर हिज बिलोज ब्लो, आप सुन सकते हो उनके बिलोज की बहने की आवाज़। बिलोज मैंने कहा मीन्स मैंने कहा कि एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से वो क्या करते हैं, एयर क्रिएट करते हैं। ओके, यू कैन हियर हिम स्विंग हिज हैवी स्लेज, आप उसके हथौड़े चलाने की आवाज़ भी सुनते होंगे। विद मेजर्ड बीट एंड स्लो, जो कि रेगुलर इंटरवल पर आपको मिलता रहता है जब वह हैमर चलाता है, मतलब किस चीज़ को हैमर से पीटता रहता है। ओके, लाइक अ सेक्सटन, ठीक उसी तरह जिस तरह से चर्च का अधिकारी बेल को, गांव के बेल को बजाता है, रिंगिंग करता है। व्हेन द इवनिंग सन इज लो, जब शाम ढलती है तब गांव के सेक्सटन जो है सो गांव के बेल को बजाता है। ठीक उसी तरह ब्लैक स्मिथ भी सुबह से शाम तक जो है सो हैवी स्लेज चला करके और साउंड क्रिएट करता है। और इट इज़ सिमिलरली लाइक अ विलेज बेल। ओके, तो ये थर्ड स्टेंजा था, नंबर 4। एंड चिल्ड्रेन कमिंग होम फ्रॉम ए स्कूल लुक इन एट द ओपन डोर, दे लव टू सी द फ्लेमिंग फॉल एंड हियर द ब्लोज roar and catch the burning sparks that fly like chaff from a threshing floor. Here the poet wants to describe the school children. Henry Worth Longfellow wants to describe the behavior of school children. And what the poet wants to tell and describe children coming home from school. Longfellow is telling जब बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो घर आते समय लुक इन एट द ओपन डोर, तो वो जो ब्लैक स्मिथ का दुकान है उसके दरवाज़ा खुले हुए रहते हैं और यह जो पीटने का काम करते रहता है उस साउंड को वह स्कूल के बच्चे सुनना चाहते हैं। दे लव टू सी द फ्लेमिंग फॉर्ज, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह जो है सो फ्लेमिंग फॉर्ज का मतलब आग की लपटें, आग की लपटें को देखना चाहता है। उससे वे स्कूल के बच्चे बहुत खुश होते हैं, बहुत जो है सो उन्हें आनंद आता है। और हियर द बिलोज रोअर, और उस बिलोज टूल्स की आवाज़ मतलब गर्जन को भी सुनना चाहता है। एंड कैच द बर्निंग स्पार्क्स दैट फ्लाई, और वहाँ क्या देखता है कि आग जो लगी हुई है उसके लपटें उठती है और हवा में ऊपर उड़ जाती है। स्पार्क्स दैट फ्लाई, चिंगारी क्या होती है, उड़ जाती है। लाइक सैफ फ्रॉम अ थ्रेसिंग फ्लोर, जिस तरह से थ्रेसिंग मशीन आप देखे होंगे, थ्रेसर देखे होंगे, उसमें से जो है सो भूसी जिस तरह से उड़ते हैं, ठीक उसी तरह से जो है सो स्पार्क, बर्निंग स्पार्क फ्लाई होते हैं। ओके, एंड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्लेजर्स in children mind, and after that they become too happy. So I mean to say this 4 stanza I have described, and it's your job and your duty. You have to tackle it, because most of this is number 4, chapter number 4, and I mean to say it will finish in next class, and 4 stanza is remaining, and you have to read it properly at home, and finally you will able to understand and you can express the views of the poet. Okay, thanks.